اور آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ریاست کا محور پاکستان کی عوام ہے. کوئی فرض مادر وطن کی حفاظت سے زیادہ اہم نہیں. مادر وطن کے دفاع کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ آئین پر کار بند رہتے ہوئے ریاست پاکستان کے ساتھ وفادار رہیں گے. بیش بہا قربانیوں کے نتیجے میں قائم ہونے والے امن کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 147ویں لانگ کورس، 13ویں مجاہد کورس، 6واں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس اور 21واں لیڈی کیڈٹ کورس کے پاس آؤٹ ہو گئے. آرمی چیف نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو اعزازات دیے. اعزازی شمشیر اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر عبداللہ بن طارق نے حاصل کی. پریزیڈنٹ گولڈ میڈل بٹالین سینئر انڈر آفیسر علی عامر نے حاصل کیا. پاس آؤٹ ہونے والوں میں فلسطین، بحرین، عراق، قطر، سری لنکا کے کیڈٹس بھی شامل ہیں. Academy Senior Under Officer Abdullah bin Tariq from 147th PMA Long Course, and I hail from Rajaya, Aptabad, as I have been awarded with the prestigious Sword of Honor for being the overall best cadet of my course. I'm Battalion Senior Under Officer Ali Amir from 147th PMA Long Course. Hard work and consistency are two aspects which I've kept before me during my training at Pakistan Military Academy. I, Battalion Sports Sergeant Dayananda from Sri Lanka. It's a great honor for me to receive this award and represent my country in Pakistan. I am Course Under Officer Adnan from 13th Mujahid Course. Alhamdulillah. Today I have been awarded with the Chief of Army Staff Cane for being the overall best cadet of my course. Pakistan Military Academy plays a critical role in ensuring the safety and security of our country by training the future leaders of Pakistan Army. I am Course Under Officer Adil from Integrated Course 66, and I have the honor of being awarded with the Commandant's Cane. I'm Course Sergeant Major Fatma from Lady Cadet Course 21. Our journey here at the Academy has aptly enabled us to shoulder the responsibility to defend our beloved Pakistan, for which we are ready to make any sacrifice. I'm Course Officer Salman Khan from Basic Military Training Course 6. Today I've been honored to receive the Commandant's Cane for being the overall best cadet of my course, besides the hard work and dedication. I am Senior Under Officer Jarjis and Iraq Cadet passed out with 147 course. I had a very memorable experience during my tenure in Pakistan Military Academy. Coming from broadly Muslim country, my experience with Pakistan Army has been that of the brotherhood and long-lasting friendship. Assalamu alaikum, I'm Gentleman Cadet Ibrahim from Palestine. It's a matter of honor for me to graduate from Pakistan Military Academy with 147 long course. Pakistan Military Academy was a platform that has helped in grooming my personality as an officer. I'm GC Abdulaziz from Qatar. I have graduated as part of 147 long course from Pakistan Military Academy. I'm very honored and grateful to be part of this journey. وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بڑی سفارتی کامیابی. چین نے مختلف برآمدات پر عائد پابندیاں ختم کر دیں. خنجراب بارڈر پر سرحدی تجارت کا دوبارہ آغاز ہو گیا. بلاول بھٹو نے پورا سال تجارت جاری رکھنے کا مطالبہ بھی منوا لیا. گلگت بلتستان اسمبلی نے خنجراب بارڈر پر تجارت کے دوبارہ آغاز کے حوالے سے قرارداد بھی منظور کر لی. بلاول بھٹو کی تجارتی عمل کے پورے سال کے لیے آغاز پر گلگت بلتستان کے عوام کو مبارکباد. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف کیس سماعت کے لیے مقرر. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی بینچ 2 مئی کو کیس کی سماعت کرے گا. اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ، بار اور پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کر دیے گئے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف سمیت 9 سیاسی جماعتوں کو بھی نوٹسز جاری. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت پر عدالتی اصلاحات بل پر عمل درآمد روک دیا تھا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک بار پھر ٹروتھ کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ آج پاکستان میں ادارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. عدلیہ اور بیوروکریسی میں اصلاحات کے بغیر ملک نہیں چل سکتا. آپ کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے، آئین تبدیل نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ اچھی ہو یا بری، اس کے بنائے قانون کو ماننا ہوگا. یہ خرابی ہے جب تک آپ دور نہیں کریں گے، آپ نظام نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو کیا ڈلیور کریں گے. ہم نے کاروبار ٹائم بھی نہیں بنایا تو سارے آپ بھوج گئے، یہ بھی نہ بنائیں. لیکن پروونشل گورنمنٹ کے اتھارٹی کو ڈیوالو کریں جس سے کیا ڈویژن کی سطح پر آپ کو نظام بن جائے گا. آپ کو اس کو پوری طرح ری ڈیفائن کرنا ہوگا، اس نظام کو بدلنا ہوگا. اتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ یہ آج ڈلیور نہیں کر سکتا. پروسیجر آتی ہے، نہ نیب آتی ہے، نہ وٹنس آتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں. یہ کون سے حساب کا نظام ہے؟ یہ کیا دیتا ہے؟
लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है 20-20 साल के केसों में पड़े हुए। किडनैप के केस है, रैप के केस अब जाते हैं तो जिंदगी बंद हो जाती है। पीटीआई की टिकटों की तकसीम साकिब निसार की करोड़ों की दिहाड़ी। साकिब निसार के साहबजादे नजम साकिब और हल्का 137 पीटीआई टिकट होल्डर अबूजर चढ़ और मियां अजीज की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। अबूजर चढ़ ने कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं। नजम साकिब बोले, मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब बताएं अब करना क्या है। अबूजर चढ़ ने कहा कि अभी टिकट छपवा रहे हैं, ये छाप दें, इसमें देर ना करें। नजम साकिब ने कहा कि बस बाबा को मिलने आ जाना, शुक्रिया अदा करने के लिए और कुछ नहीं। अबूजर चढ़ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, कैसी बात कर रहे हैं। नजम साकिब ने कहा कि 11 बजे तक वापस आ जाएंगे, उनको जब भी डालने आ जाना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। जी सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर हाँ जी ये आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए, और कुछ हाँ नहीं। ऑब्वियसली क्या सी बात वो कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस, 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, उनको टिफिन डालने आ जाएंगे बस। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। बहुत ज्यादा। अच्छा नहीं, मैं सोच रही थी कि पहला अंकल को लावा या शामी टिकट जमा करा के आवा। वो देखो मर्जी है तेरी वो देख, लेकिन उनको आज की देर में मिल जरूर ली बाबा को बस। हाँ ऑब्वियसली आज सीधा इमरान को लाना है बस ठीक है। हाँ इंशाल्लाह। टिकट 12 बजे टाइम खत्म हो जाना है। टिकट छपवाएं, तस्वीर भेजें करें, और फिर वो करके आए फिर 70 है। ठीक है आ जाए। ओके ओके। व्हाट्सएप देखो। हाँ ये अबूजर ने भेजी तुम्हें? यार मैं भी कोई चीज हूँ। नहीं अबूजर ने भेजी, तुम्हें डायरेक्ट आई है। मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी तो नहीं अबूजर ही भेजा है चीज। मैं इसके ऊपर से आऊँ? आना तो आ जाओ, वैसे तो उसे ही नहीं भेजी है। अच्छा तो काम किसने करवाया? और तो नहीं करवाया। बस गुड हो गया। तो क्या सीन है? कर ले दो बात ना। ओके क्या मतलब बात कर लेता हूँ, डन डिसाइडेड था। हेलो करके बात कर लूँ कि भेजो सामान मुझे। बेसमान भेजो नहीं, 1:20 से नीचे ना लेना, तो मैं टांगे तोड़ दूंगा। यार तुम फिर फोन पे बातें कर रहे हो कि यार उजैर, मतलब कि मेरा इतना इशू कोई नहीं है, 1:20 से नीचे ना लेना उससे। ओके मैं बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत बड़ी चीज है उजैर। नजम जबान हुई हुई है ना, मैं वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चलो ओके बताता हूँ। मैं वरना डायरेक्ट हो जाऊंगा, और तो कुछ नहीं कर सकता मैं। कह दो वो ज्यादा बेहतर है। उसने वो दफ्तर आ रहा है मेरे पास जमा करवा के। ओके तुमने आना, तुम भी आ जाओ। ओके जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचें जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फिरौने वक्त बने बैठे थे तो किस तरह अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। मरीम नवाज का नजम साकिब की ऑडियो लीक पर रद्द अमल। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान को मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम और सज़ा के मुस्तहिक हैं। मरीम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा, नवाज शरीफ चुप है मगर अल्लाह की कुदरत के उसके खिलाफ साजिश करने वाले साजिशियों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज़ रुस्वा हो रहा है। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं, इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल है, ना पीटीआई से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा। खान रात को कोई बात करता है तो दिन को मुकर जाता है। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर ने कहा, खान के गैर आइनी मुतालबे कभी ख़त्म नहीं हो सकते। पहले हफ्ते में ये असम्बली तोड़ दे, ये कहता है। अब ये अहमकाना बात है, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, उनके साथ बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। इमरान खान के साथ कहते जी अब आए हैं, अब कसम खान ने खाई है इमरान खान ने कि अब जो फैसला करे मानूंगा। फिर वो कहते थे इमरान खान मुकर गया। तो एक ऐसे शख्स के साथ क्या तो यकीन है कि आप कोई बात करें तो कल को कहे कि नहीं मुझे कोई नया मुतालबा नहीं। ये वो लोग हैं जो डैम का फंड इकट्ठा किया, फिर ऐसे मैं टेंट लगाऊंगा। अब इस टेंट में क्या किसको बिठाया हुआ है? तो 5,000 रुपये मेरे इकट्ठे हो गए हैं, वो सब पूछे ना, साहब तो दे ना, कोई 10 रुपया किसी जगह लगाए हैं, कोई 100 रुपया लगाया है,
आ गया पैसे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान की पेशावर में मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। मौलाना फजल रहमान ने मरहूम मुफ्ती अब्दुल शकूर के भाई मौलाना मुनीर अहमद की दस्तार बंदी भी की। कहा, मुफ्ती अब्दुल शकूर जमात का सरमाया थे, उनकी खिदमात को मुद्दतों याद रखा जाएगा। उन्हें जितनी बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई, उन्होंने कभी मायूस नहीं किया। इमरान खान मर्जी के फैसले चाहता है, वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, एक लाडला हमारी चंद अदालतों को बहुत पसंद है। इस मुल्क में केसेस नहीं, चेहरों को देखा जा रहा है। अदालतों में फैसले एक तर्ज पर होने चाहिए। सियासी रहनुमाओं को चूहे की तरह बिल में नहीं छुपना चाहिए। इस तरीके से रिश्तेदारियों की बिना पे यहाँ पे लोगों को मिल रहे हैं, फेवर्स मिल रहे हैं। कुछ लोगों को कहे कि जी नहीं, ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, ये मेरे अदालती लाडले हैं, ये स्मार्ट हैं, ये गुड लुकिंग हैं, इनके साथ कोई और तरीका अख्तियार करना चाहिए। और बाकी लोगों के साथ जी नहीं, उनके लिए तो फिर जो कानून में नहीं भी लिखी है सजाएं, जो जुर्म आपने नहीं भी किए होते उनकी सजाएं आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे तो ऑब्जर्वेशंस पे पूरे जो है हमारे मुल्क में सारे काम चल रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस पे, परसेप्शंस पे, आप जो नैरेटिव्स बिल्ड करते हैं उस पर आप पूरा मुल्क चला रहे हो। अनफॉर्चुनेटली टॉप लीडरशिप को आप सालों साल आप जेलों में रख देते हो, और यहाँ पे वो शख्स लाडला अदालती लाडला, उसको तो एक दिन कोई खराश भी नहीं आ सकती। लीडर का फर्ज ये है कि गिरफ्तार करने को इदारा आए तो फौरी तौर पर इज्जत से उसको गिरफ्तारी दे। चूहे की तरह बिल में छुपना नहीं चाहिए। गुजरांवाला में बुज़दार सरकार की मुबैना करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। शहर के वाहिद सरकारी हस्पताल के लिए मुख्तस किए गए फंड्स में करोड़ों रुपए की करप्शन की गई। हकाइक सामने लाने वाले शहरी को हरासा किया जाने लगा। मज़ीद जानते हैं जाहिद इकबाल राना से। जी जाहिद, बताएगा इस मुतालिक। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में एक और होने वाला बड़ा मेगा करप्शन स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आ चुका है। तो गुजरांवाला की आवाम के लिए जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में जो है वो गुजरांवाला के सरकारी अस्पताल DHQ के लिए जो है वो 2 अरब रुपए के जो फंड थे वो जारी किए गए, जिसमें मुबैना तौर पर जो है वो करोड़ों रुपए की जो करप्शन है वो सामने आई है। शहरी इस वक्त हमारे साथ है। देखिए, ये जब उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट थी उस वक्त ये गरीबों के लिए 2 अरब रुपए इशू हुए थे। 151 करोड़ एक ऑडिट रिपोर्ट है, दूसरी 37 करोड़ की ये करप्शन हुई है। लेकिन उसके बावजूद मुझे 2 साल से जलील किया जा रहा है, चक्कर लगवाए जा रहे हैं एंटी करप्शन में। उस दौर में उस्मान बुज़दार साहब के दौर में भी मैं वज़ीर आला स्पेक्ट्रम टीम को बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।